چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی غیر منصرف کے اسباب کا بیان تفصیل کے ساتھ میں فن عدل سے بیان کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اجمالاً اور مختصراً جو بات ہو سکتی تھی ہر ایک کے بارے میں بتا دیا انہوں نے۔ اب یہاں سے فا برائے تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ فالعدل خروجہ عن صیغتہ الاصلیۃ تحقیقاً آگے آئے گا، او تقدیراً آئے کہ نہیں آئے، او تقدیراً۔ غیر منصرف میں سے کئی ہیں، بڑے نو ہیں، دقیق قول ہے، ان میں سے نمبر 1 پوزیشن پہ انہوں نے عدل کو رکھا ہے۔ اور عدل کے علاوہ کسی اور اسباب منع صرف کی انہوں نے تعریف بیان نہیں کی ہے۔ پہلی چیز مقدم کرنے کی وجہ، دوسری کیا ہے کہ اور اسباب منع صرف ہیں کتاب میں، ان کی تعریف انہوں نے نہیں کی، صرف کس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، عدل کی تعریف بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنے سے پیش رو نحویوں کا کیا کیا ہے، نحویوں کی مخالفت کی انہوں نے، اس لیے تعریف الگ کرنی پڑے گی، تو حالانکہ انہوں نے ذکر کر دی۔ اگر تعریف نہ پیش کرتے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے نزدیک عدل کی تعریف کیا ہے اور دیگر نحویوں کے نزدیک عدل کی تعریف کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیگر منع صرف کے منع صرف ہونے میں کچھ شروط ہیں، شرطیں ہیں۔ وصف کے لیے کیا شرط ہے، اس کے بعد فوراً اس کا بیان آیا گیا۔ شرط ان یکون فی الاصل آیا، اب آگے چلے جائیں تانی سے آئیے شرط ہوا عالمیہ، ایسی مارکہ میں جائیے شرط ہوا ان تکون عالم، اجماع میں آئیے شرط ہوا ان تکون عالمیہ، اور بچے کیا ہے ترکیب شرط ہو العالمیہ۔ جمع کے بارے میں کیا ہے بھائی، جمع شرط ہو صیغۃ منتہی الجموع، ترکیب شرط ہوا العالمیہ۔ الف نور کے بارے میں امکان فی اسم فشرط العالمیہ آیا، وزن پر شرط ہوا۔ سب میں عدل کے بعد جتنے بیان ہیں غیر منصرف بننے کے لیے ان کی کچھ کیا ہے، شرائط ہیں، تو جن میں قیود زیادہ لگیں گے وہ کیا ہوں گی، تھوڑی سی قید کی جمع قیود ہے، چیزیں میں کیا ہے جتنی قیود لگاتے جاؤ وہ چیز کیا ہو جائے گی۔ اب وہ گویا کہ جن چیزوں میں قید ہو، قیود اگر ہو تو وہ کیا ہوں گے، خاص در خاص میں چلے جائیں گے۔ جن میں کوئی قید نہ ہو گویا کہ وہ کیا ہے، عام ہے، مطلق ہے، یعنی اس کی گویا وہ مقصد کے لیے ہو گیا۔ تو اب یہ کر سکتے ہیں کہ غیر اسباب منع صرف میں سے 9 میں سے ایک ایسا ہے جس میں کوئی قید وغیرہ نہیں، شرط نہیں، اس میں جب شرط نہیں تو گویا کہ وہ ان باب میں آنے والے دیگر علتوں کا وہ باب ہو گیا، تو باب وغیرہ کہاں رہے وہ پہلے رہے، اس کو کیا کر دیا، اس کو ٹھیک ہے۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا، آپ نے مذہب کی غذائیں کی ہوگی، عدل یا دلو عدلن و عدولن، یہاں عدل بمانے عدول ہے، کہاں سے میں آیا ہے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کا مطلب کیا ہے، ہاں واہ ثم الذین کفروا، ماں ڈالوں گا اڑا میں نہیں پڑھایا 10 میں بولو، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جو کفر کیا وہ عدل کرے گا۔ ارے یہ بتاؤ نا عدل کا معنی کیا ہے، عدول کرنا، اپنے حقیقت سے نکل جانا، ہاں تجاوز کر لینا۔ ثم الذین کفروا، پھر وہ جن لوگوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، یا کفروا بربہم، کس سے چلو کہ بربہم کو، اب تمہارے سامنے آپ دو ہی چیزیں ہیں، تو یہاں یعدلون کس سے آیا ہے، عدول سے آیا ہے، یہ کا مطلب تجاوز کر دینا۔ عدل کا مطلب برابری نہیں ہے، حد میں رہنے والا وہ الگ معنی ہوتا ہے۔ اور بھی کہیں جو معاشی میں یہ آیا ہے نا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف سے کام لو، دونوں آ گیا، عدل یا عدل، عدل سے بھی ہے معاشی میں اور عدول سے بھی موجود ہے۔ یہاں جو یہ بڑا عدل ہے کیا ہے، عدل بمانے عدول ہے، ٹھیک ہے۔
आपने गर्दानी में पढ़ी थी क्या? आदाला यादिलु आदिला, उसके बाद क्या आता है? और आगे कथन को ठीक है। तो ये जो लफ्ज़ आदिल है ये मस्दर मजहूर है, मतलब क्या है? इस मस्दर से पहले मजहूर निकला होगा, यानी क्या है? गरबा यदरिबु गरबन, बढ़ा दो जाएगा गरबन। तो मस्दर मजहूर का तर्जुमा क्या करते हैं? ज़रबा यदरिबु ज़रबन, मारना, ज़ुरबा यज़रिबु ज़रबन, मारा जाना। यहाँ तर्जुमा अब तक हमने किया, क्या होगा? निकलना। अब वो निकलने वाला तर्जुमा क्या हो गया? यहाँ से निकल गया। अब निकल, हाँ, अब इसमें क्या करना है आपको? निकाला जाना। चलो समझ आया ना? बाद में क्या मसदर है? मजहूल है। अब जो भी पीछे बढ़े थे आप, अल्लाह कहते हैं सेगे का अपनी कंडीशन इस सूरत से निकल जाना नहीं, निकाला जाना। जो पहले माना पड़े थे निकल जाना वाला, अब वो माना यहाँ आकर के निकल गया। अब कोई माना क्या है? दूसरा। अच्छा, यहाँ बड़े मिसाल में लिखा है सीगत असलिया जुमरात हयत असलिया, सूरत असलिया। और अदर की जो औजान है वो कितने हैं? क्या क्या? 6 लोग बोलेंगे, 6 अगर एक ही बोलेंगे मैं क्या समझूंगा कि 6 ने बोल दिया। हाँ, याद कौन करेगा भाई? हमारा अब्बा जी याद करेंगे। चलें, ठीक है, चलो देखो, ठीक है ना बेटा? तो आदिल क्या है? कुछ बात और सुनिए आप। कलाम अरब में कुछ कलिमात ऐसे भी पाए जाते हैं जो गैर मुनसरिफ पढ़े जाते हैं, लेकिन उनमें गैर मुनसरिफ पढ़ने की जो इल्लत होनी चाहिए, 2 इल्लत हो या 1 इल्लत हो, जो 2 इल्लत को के मकाम पर खड़ा हो जाए। कुछ कलिमात ऐसे हैं जिनमें क्या है? गैर मुनसरिफ पढ़ने की कोई इल्लत नजर नहीं आती है। तो बस नहवी हजरात अपने कायदे उसूल ज़वाबित की हिफाजत की पेश नजर क्या करते हैं? कुछ नहीं करते तो आदलों को मान लेते हैं, ठीक है? इसको क्या करते हैं? आदले तकदीरी के खाते में, बैंक में खाते में डाल देते हैं उसको, ठीक है? उसी में से है बाब कताम। बाब कताम के बारे में आगे तफसील बयान करूँगा इंशाल्लाह, बात कुछ तो आ जाएगी। तो अदले तहकीकी और कुछ है तकदीरी। तहकीकी मतलब उसकी कुछ ना कुछ क्या हो? असल मौजूद हो। असल का पता चलाने के लिए कई सूरतें आपके सामने नजर आ जाएंगी। गौर से सुनना बेटे। कभी कभार तो ये होगा कि जो लफ्ज का एक ही माना होता है, 2 माना नहीं होता है। रास्ता क्या लिखो? जो भी लफ्ज आपको माना देगा उसके मुताबिक माने होंगे अला सबील बदलिया। से लफ्ज मौला है, सही हालत में लिखा है इसके 19 माने। एक लफ्ज मौला बोला जिस एक माने में उस वक्त वो इस्तेमाल हो रहा है, उसी वक्त वो दूसरे माने में इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। बदल बदल के इस्तेमाल तो होगा। लफ्ज मौला का माने क्या हो गया? आका हो गया, गुलाम के माने में हो गया। तो कोई ऐसा लफ्ज जो हमने इस्तेमाल किया जो गुलाम के माने में, क्या उसी वक्त वो लफ्ज आका के माने में इस्तेमाल हो रहा है? क्या नहीं हो सकता। अला सबील बदलियत ये इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब भी वो दलालत करेगा वो एक ही माने में दलालत करेगा। उसके जात में मुताबिक माने हैं, वो मुताबिक माने में एक के बाद दिगरे बताएगा जहाँ जैसा मौका माल होगा, ठीक है? ताजमहल देखो ना देखो, मौका माल, ठीक है? चल समझा रहे, दिमाग बुझा नहीं आ रहा। तो ऐसी ही क्या कंडीशन है? क्या बताने जा रहा था? अदले तकदीरी और तो तकदीरी की कंडीशन ये है, कभी कभार वहाँ किसी गैर चीज को में भी इसको जारी कर देते हैं, किस लिए? तो वहाँ पता ही नहीं रहता कि इसकी क्या असर क्या है, इसको गैर मुस्लिम क्यों पढ़ रहे हैं आप। तो अदले के अलावा जितनी भी आप चीजें हैं, ये भी तो मुमकिन है किसी कलमे को गैर मुस्लिम पढ़ा जा रहा है, वहाँ असबाब मुनासिब में 2 सबब नहीं है, एक ही कोई सबब आपको नजर आ रहा है। आपको चाहिए कि अदले के अलावा दीगर असबाब को भी क्या करें, उसमें आप शामिल कर लें। जैसे कि आप उमर पढ़ रहे हैं,
उनमें क्या है भाई, आलम में और क्या है, अदल है। आप कुछ और भी निकालो भाई, और निकालने में क्या है, और चीजों को मुकद्दर मानने में उम्र के अंदर क्या थोड़ी दुश्वारी है, क्योंकि और चीजों के लिए शराइत है। अदल बेचारा क्या है, बगैर शर्त के मौजूद है, तो कोई भी इसका दामन इतना वसी है अदल का, जिसको कहीं जगह ना मिले क्या हो जाए, आ जाए मेरे दामन। अदल शेरा की नहीं हुई, नहीं आलम आलम इस चीज वगैरह टूट पड़ती है बलाए जिन पर, अल्फाज और कलिमात में कुछ ऐसे भी अल्फाज कलिमात हैं जिन बेचारों को घर में से पढ़ने ही नहीं दे रहा है, बनाए उन अल्फाज पर टूट पड़ी हैं, टूट पड़ती हैं बनाए जिन पर, जिनको मिलता नहीं कोई यावर, मुजमा जमा तरकी वगैरह कोई उनको जगह नहीं दे रहा है। ये क्या होता है, हर तरफ से वो पूरा अरमा फिर कर अगले तेरे दामन में छुपा करते हैं। अगले के दामन में सब पढ़ा लेते हैं, ठीक है यार। आज दूसरा शेर का मैं इसको चेंज कर दिया। चलो देखो, तो अगले का तर्जमा क्या करेंगे आप, मसदर मौजूदा तर्जमा करेंगे। चलो देखो तर्जमा करते हैं आप। अगले तर्जमे का मतलब क्या होता है, यानी वो यहाँ दो चीजें होंगी बेटे, एक तो मादूल जिसको निकाला गया है, एक मादूल अन हो जिससे निकाला गया। जो निकला है उसके निकाले जाने, जिससे निकला है वो मादूल अन हो पर अगर कोई दलील कायम हो जाए, चाहे जैसी भी सूरत में हो, उसका क्या कहेंगे, अदले तहकीकी। और अगर उसके असल पर कोई दलील कायम ना हो तो वो क्या अदले तकदीरी। इसकी तारीफ शायद आपने देखना उसको नोट कर लीजिएगा। चले तर्जमा कीजिए आप। फल अदलु क्या है भैया, ये मुब्तदा है, खुरूजु से खबर है। अदल कहते हैं, फल अदल में इफलाम में कौन सा, इफलाम बड़ा आदे खारजी है, क्योंकि इससे पहले क्या हो गया, अदल का तस्करा है ना, है ना। इसके बाद जितनी भी आसमा आ रहे हैं अदल वल सब में क्या होंगे, इफलाम बड़ा आदे खारजी, जो फिर कहा है खारजी वाला, कौन सी तहकीक कर रहे हो, अदल बड़ा इफलाम बड़ा आदे खारजी, ऐसा भी है, इफलाम बड़ा तहकीक कहाँ है। चलो खुरुजहु अन सीगतिहिल असलियती, क्या तर्जुमा करेंगे, अदल कहते हैं, अदल वो सिफत है, इसमें तर्जुमा नहीं करेंगे, ठीक है, क्या तर्जुमा कर रहा हूँ, यह अदल वो सिफत है जिसे उसकी अपनी सूरत से निकाला गया हो, हाँ तहकीकन हो, अदल आगे नीचे नहीं या तकदीरन हो, समझ में आ रही है। चले मिसाल ले ली तहकीकन की, कसुलास व मसलस। मैं कहना क्या चाह रहा था बेटे कि लफ्ज जो है ना, मतलब लगी बात रुक गई थी कि लफ्ज जो भी होगा उसका एक ही माना होगा एक वक्त में, ठीक है। अब यहाँ लफ्ज क्या आ गया, सुलास, क्या तमाशी में है, पानी की हो माता वलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, ठीक है। ये आला कयास है, हाथ से लेकर ऊपर जा सकते हैं 10 तक। उसका मतलब क्या हो गया, दो दो दो, मसलस का तर्जुमा एक हो गया, दो समझ में आ रहा है, मसलस तीन तीन, मसना दो दो, मसलस तीन तीन, रुबा चार चार, तो ये चार फिर चार, दो तक नहीं है। एक लफ्ज का जो माना आता है वो एक ही आता है, ये चार चार डबल डबल क्यों आ रहे हैं, तो ये आरा होएगा बता रहे हैं कि इसकी जात में एक लफ्ज नहीं है, क्योंकि एक लफ्ज एक माने में दलालत करता है। पता चला कि ये इसकी असल कुछ और होगी, उससे इसको कुछ और बनाया गया होगा जो अपने असलों को बता रहा होगा। मसलस का मतलब क्या करते हैं आप, तीन तीन, मतलब ये होगा कि इसके असल क्या है, सलासतुन सलासा। क्यों असल ये है, क्योंकि एक लफ्ज जो है एक वक्त में एक के माने पर दलालत करता है। ये ऐसा लफ्ज है मसलस एक माने पर नहीं, दो दो माने बता रहे हैं, दो दो तीन तीन चार चार, ठीक है, पसंद आ रही क्या। तो लफ्ज सलास का डबल माने पर दलालत करना ये बता रहा है कि किसने क्या है, सलासतुन और डिटेल में बढ़ेंगे सब बयान, उस पर आपको आने वाला नहीं, दिक्कत हो जाएगा। पसंद आ गई, ये तर्जुमा क्या है मसलस के अंदर, ठीक है। फल क्यों माता वलद मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, मसना तो क्या कर लिया, मसलस कर लिए,
सुलह सहा तो क्या कर लिया आप? सुनाया, बुझाओ कर लिए, जो बना सकते हैं, जो दिया गया उसका औजार के अंदर। बात फिर हो गई, फिर तारीफ करूं। वह ऐसी सिफत का अदल ऐसी सिफत का नाम है कि जिसे उसके अपनी असली सूरत से निकाला गया हो। क्या ही करेंगे? सेगे का अपनी असली सूरत से निकाला जाना, खास तहकीन हो या सेगे का अपनी असली सूरत से निकाला जाना अदल कहलाता है। क्या लिख लिया? सेगे का अपनी असली सूरत से निकाला जाना अदल कहलाता है। ये निकाला जाना तहकीकन हो या तकदीराना। बस तहकीक की मिसाल क्या है? सुलास है, मसलस है, उसके बाद क्या लिखा है? बुखारा और जुमा है। कसरत अमसाल ये क्या है? कसरत अक़साम की तरफ क्या है? दाल है बेटा। यानी औजान की कितनी सूरतें हैं, कितनी किस्में हैं? औजान अदल की वो 6 सूरत है। कौन कौन है? मफ़ाल जैसे ये क्या आ गया? मसरस। उसके बाद क्या? फ़ाल जैसे सुलास, फ़ाल जैसे सहर, फ़ाली जैसे फ़ाली, खतामी नहीं और कुछ और, हज़ारे और कुछ, खराबे और ये तो सिफत में चला जाएगा और खतामी उगा के चल जाएगा। चल उसके बाद क्या? फ़ुआलो जैसे उमरो और फ़ाली जैसी हमसे। अरे खत्म खत्म कर रहा है दोस्ती हुई है खत्म से। खत्म किससे खत्म है? औरत का नाम है। ढूंढ ढूंढ के लाए हो क्या? चलो यार खुरूज है, खुरूज अदले। अदले कहते हैं क्या? सेगे का अपनी असली सूरत से निकाला जाना। ऐसी सिफत का तो कहते हैं जिसे अपने असली सूरत से निकाला गया हो। क्या कर सकता है? तर्जुमे में चक्कर में पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आगे क्या पढ़ोगे? समझोगे? चलें, हो गया। तो ये कितनी मिसालें पेश की? सुलास, मसलस, बुखारा और जुमा। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इन्होंने पेश कर दिया। और बच्चे कौन है? फ़ाले की मिसाल, फ़ाल की मिसाल और मसलस हो गया, सुलास हो गया, 2 गए। और क्या हो गया? फ़ौर की मिसाल में 2 बात आ गई, 3 की मिसालें बची हैं। उसके जुमा की मिसाल दो ना, फ़ौल, बुखार, फ़ौल दो लेकिन 2 वजन है। क्या हो गया? फ़ौल के वजन में तो है ना बुखार, जुमा। चले तो सुलास और मसलस में किस तरह हजरत तहकीक किया, समझ आ गया? अब यहाँ पे देखो बेटे, उखर और जुमा में कैसे? उखर के बारे में क्या इसमें तफसील है? ठीक है, गौर से देखना आप। क्या है इसमें तफसील है? इसमें तफसील का इस्तेमाल जो है 3 तरीकों में किसी एक तरीके से जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब हाशिया नंबर आप देखना चाहो तो देखो आप, इसमें लिखा है उखर क्या है? इसमें अदले तहकीक की है। क्यों? इसलिए कि उखरा की जमा है और उखरा क्या है? मुअन्नस है आखिर का। आखिरो उखरा, अफालो फोला। ठीक है, इसमें तफसील करके कायदा ये है कि वो 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से इस्तेमाल होता है। यहाँ इबारत में उखर जो इस्तेमाल हुआ है, उन तीनों तरीकों में से कोई तरीका है? आइब नाम के साथ में है क्या? नहीं। मिन के साथ में है? नहीं। इजाफत है क्या? नहीं है। यहाँ जब तीनों तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है, पता चल लिया कि इन तीनों तरीकों में से किसी एक से इसको क्या कर लिया गया है? अदूल कर लिया गया है, वहाँ से उसको निकाल लिया गया है कि और दीगर तरीके से भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें तफसीर का इस्तेमाल 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से होना ही होना है। नहीं हो रहा है 3 तरीकों में से किसी एक से, तो क्या पता चला? तो यहाँ पे कहना कि क्या किया? उन 3 तरीकों में से कोई एक सूरत दूसरी निकाली गई है, बनाई गई है। ठीक है, उसको बयान किया। बात ठीक है, बात खत्म बुखार की। जुमा में आ जाइए। जुमा के बारे में लिखा होगा। जुमा क्या है बेटा? ये मादूल है जुमून से या जुमा या क्या है? जमाए क्या है? नहीं, जमाए नहीं आएगा।
सहारा जमा होना चाहिए, ठीक है, जुमा लिखे उन्होंने, जमा, उसके बाद क्या, सहारा के वजन पर, और क्या जमावात, सहारावात लिखा है, ठीक है। चलो कायदा क्या तवज्जो सुनो कि यही गड़बड़ी है उस किताब के अंदर जो आप पढ़ने जा रहे हो। कौन सी किताब है? उसमें इख्तिसार के साथ बात लिखी इसी मकाम पर, नाजिया के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है। देखिए आप ज़ाब्ता क्या लिखे बेटे, देखो ये जुम्मून क्या है बेटे, तवज्जो से सुने, उसकी गुफ्तगू है, फंस जाओगे तो बाद में आप। इसमें लिखा हुआ आपके अंदर मौजूद है कि ये क्या है, जुमाओ, ये क्या है, जमा की जमा है। किसकी जमा है? जुमाओ क्या है? अब इसकी जमा क्या आती है? आमर की जमा क्या आती है? आमर का मुन्नस क्या है? हमरा, ठीक है, तर्जुदी है। हमरा क्या है? आमर का मुन्नस, जमा क्या है इसकी? अमरुन। अब इसकी जमा, अब इसका मुन्नस, अब इसका मुन्नस बैदा, जमा क्या आती है? बीजुन। कायदा जारी हो गया 26वां मुअत्तल का, बीजुन बना देते हैं बाद में, ठीक है, समझाया? ईन क्या है? जमा है, आईना मुअन्नस है, आयन मुज़क्कर है, जमा क्या आती? वही इन्होंने है, बीजुन के वजन पर, उसके कभी हुरीन ईन आया में, इन जमा है इसकी आईना की। चलो तो जमा का सेगा अगर किस माने में बड़े, सिफती माने वाला माने मुझे से अमर सुर्ख होना, अब ये सफेद होना सिफती माने में मौजूद है, तो उसकी जमा जो आती है फ़ौलुन के वजन बात है, किस वजन आती है? फ़ौलुन के वजन आती है। बात कंप्लीट है, जैसे क्या है, हमरा की जमा अमरुन, हमरा क्या है, सिफत वाला माने दे रहा है, सुर्ख होना, सफेद होना। और अगर इसमें महज हो, सिफत के माने में ना हो, तो उसका हक है कि जमा क्या आनी चाहिए, जमे तकसीर फाला के वजन आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? फाल। ऐसे क्या, सहारा लिखा होगा, कम है। अच्छा चलो इसके अंदर मौजूद है, सहारा की जमा क्या आती है? सहारा आती है, ठीक है, जमा तकसीर है क्योंकि वाद का वजन इसमें, तो अगर फाला का वजन सिफती माने में हो, उसकी जमा क्या आती है? फ़ौलुन आती है, जिसे हुम्रुन। और अगर इसमें माज के माने में हो, तो उसकी जमा क्या आती है? दो जमा लेके आएंगे, जमा तकसीर सहारा के वजन पर, और जमा सालिम किसके वजन में आती है? लिखा होगा सहरावाद, जमावाद के वजन पर, फालावाद के वजन में आती है। अब यहाँ पे आएगा जुमाउन, जुमा ये जमा है, तो दोनों ही कंडीशन इसके अंदर मौजूद नहीं है। जुमून यानी फ़ौलुन के वजन में नहीं मौजूद है, ऐसे क्या फाला के वजन पर है क्या? नहीं है। तो अगर जमा से गए सिफत के माने में अगर मौजूद है, उसकी जमा क्या आनी चाहिए? फ़ौलुन के वजन आनी चाहिए। यहाँ मौजूद है क्या? नहीं है। मौजूद है? नहीं है। और अगर ये इसमें माज के माने में होता, सिफत के माने इसमें अगर नहीं लिया जाता, तो क्या होना चाहिए इसकी जमा? सहारा के वजन होनी चाहिए, फाला के वजन होनी चाहिए, यानी जमा होनी चाहिए, या जमा सालिम बनाएंगे तो जमावार। तो जमा की तीन कंडीशन हुई, तीनों ही कंडीशन में से किसी में नहीं आ रहा, बल्कि क्या बन गया? जुमाउन बन गया है। पता चलेगा कि वो इसी जमा से क्या हो गया? मादूल है, इसके असल मौजूद है, यानी जुमून से जुमाउन बना लिया गया। तो जब इसके असल मौजूद है तो जमा क्या हो जाएगा? अदले तहकीक हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब आगे चल कर जो बयान करने जा रहे हैं तकदीरी की मिसाल। तकदीरी की क्या, अदले तकदीरी कहाँ कहाँ लेते हैं, इसके बारे में एक ज़ाब्ता दिरायतुल में मौजूद है, उसको लिखना चाहेंगे, लिख लें आप। मा कुद्दिरल अदलु फी मकान, इनका किसी भी मकान भी है, मकान उसकी तीन सूरतें, ज़रूरत मनई सर्फ कमा फी उमर, उमर में लफ्ज़ ऐसा है कि गैर मुंसरिफ पढ़ा जा रहा है, तो आदल तकदीरी वहीं लेते हैं। इसकी तीन सूरतें नजर आती हैं कि गैर मुंसरिफ पढ़ने के लिए अदल मान लिया, जैसे किसमें? उमर में माना कि नहीं माना? जुबर में, उमर जुबर। अब एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, तहक्कुकिल बिना, कि मबनी बनाने के लिए अदल मान लिया जाता है, जैसे कि हज़ारी, किसमें भाई? हज़ारी।
हजारे पढ़े हो, हजारे फंसा के किसको क्या है कतार अस्माए आकार देख के आने वाला ना देखेंगे हम लोग। दूसरा माना हो गया। तीसरा माना क्या लिया है अखावात, या कभी कभार ऐसा है कि किसी इस्म को उसके नज़ायर उसके हम जिन्स या हम सूरत अस्मा से मिलाने के लिए उसमें आतले तकदीरी मान लिया जाता है। जैसे खताम है वो इबारत है कि वो बाबे खताम, ठीक है। तो आदले तकदीरी मानने के लिए 3 सूरत है। क्या क्या भाई? गैर मुसल्लम पढ़ने के लिए, या फिर दूसरी क्या है मबनी बनाने के लिए, तीसरी सूरत उसके हम पल्ला इसमें के मुकाबले करने के लिए, उनकी पैरवी उन जैसा बनाने के लिए क्या करते हैं? अगले तकदीर को मान लेते हैं। 3 ही सूरत इसकी बनती है। अब यहाँ उठा के देखो बेटे, उम्र क्या है? बाल लोग माना ये किससे माफूज है? ये आमिर से माफूज माना गया इसका, लेकिन असली नहीं इसको मान लिया गया। और बाबे खताम से मुराद क्या है? और से सुनना बेटे, लफ्ज़ खताम जो है ना ये मालूम है किससे? खतामतुन, खतामतुन ये नाम है औरत का। तो इसमें आदले क्यों माना गया? इसलिए माना गया है कि ये लफ्ज़ खताम क्या हो जाए भाई? अपने जिगर आयान मुअन्नसा, पढ़े हो आयान मुअन्नसा, आयान मतलब जात, जो क्या हो जाए? बाबे खताम से मुराद क्या है? हर वो आलम में जो क्या हो, हर वो इसमें जो आयान मुअन्नसा का क्या हो आलम, वो एक शर्त है। दूसरा है उसके आखिर में रा ना हो, क्योंकि जिनके आखिर में रा हो उसको राहरी क्या पढ़ते हैं? मबनी पढ़ते हैं, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनके आखिर में रा ना हो, जैसे क्या है लफ्ज़ खताम है, तो उनके मोरब मबनी पढ़ने के सिलसिले में इख्तलाफ है। लिखा है फी तमीमिन ऐ फी अख्तरी तमीमिन, नीचे लिखा होगा मैंने सुतूर के अंदर, बनी तमीम कबीला है उनमें से अक्सरों के नजदीक खताम के अंदर क्या पढ़ते हैं भाई? इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं गैर मुनसरिफ, और बाद ऐसे हैं जो इसको क्या पढ़ते हैं? मबनी पढ़ते हैं, ठीक है। अक्सर बनी तमीम वाले क्या पढ़ते हैं? गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं। बाज बनी तमीम वाले इसको क्या पढ़ते हैं? मबनी पढ़ते हैं। और अहले हिजाज के नजदीक क्या है? ये लफ्ज़ जो खताम वगैरह सब क्या है? वो क्या बने? मबनी इसको पाया था। पढ़े हो आप? मबनी क्यों पाया था? इसलिए कि हजारे ये किसके मुशाबे हैं? नजाले के मुशाबे है। नजाले क्या है? अस्माए अफ़ाल में से, और वो अस्माए अफ़ाल नजाले किसके मुशाबे है? इंजिल के मुशाबे। इंजिल क्या है? कहाँ चला गया? करीब हो करीबी शई करीबन लोग मराना पड़े कि नहीं पड़े थे? ये बेचारा करीब है किससे? इससे। वो करीब है उससे, वो करीब है उससे। ये क्या सिलसिला वसीला जोड़ते जोड़ते कहाँ पहुँच गए? तो गैर मबनी इसमें था, वो क्या बन गया? बेवसीला न जियो खुदा बनता नहीं, मिलता नहीं माजल बनता का। इसलिए क्या हो गया? बेवसीला तो मबनी बनता भी नहीं, वसीला चाहिए। मबनी नस्ल का मबनी नस्ल के वसीला तलाश कराए। चलो तो क्या होना चाहिए? बाबा कदम से मुराद क्या है? लिखा होगा नीचे कि क्या हर वो इसमें जो फाले के वजन पर हो, मुअन्नस का आलम हो, उसके आखिर में रा ना हो। एक बात और बेटे, हम हवामे के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमान ने कुछ मिसालें पेश की हैं। किसकी? फ़ौलों के वजन पर जो मिसाल आती है गैर मुनसरिफ, जिसमें क्या आदले क्या निकालते हैं? तकदीरी निकालते हैं। वो 14 मिसाल उन्होंने पेश की, मैं पढ़ देता हूँ, वो चीज़ आपके महफूज हो जाएंगे। देखिए फटाफट वो कौन कौन है बेटे? हम हवामे के अंदर ये 14 मिसाल है, देखिए आप। और दीगर किताबों में एक और है, तो 15 चीजें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। वो कौन है? उमरो जुफरो जुहालो सासे सुहालो जुशमो जुमाओ उजहो दुलफो उसमो जुहा आएगा। जुहा यूँ था तो जुहा पढ़ेंगे उसको। बुलाओ व मुदारो व हुबालो हुदारो कुसमो। ये कितने हो गए टोटल? 15 हो गए। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने हनुल अवामे के अंदर 14 शुमार किया, लफ्ज़ हुदलो को खारिज कर दिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक गुफ्तगू बस करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बाबे कदम से बात समझ आ रही है, इससे मुराद क्या है? और एक बात और याद रखिएगा, लफ्ज़ खताम जो है ना बेटे, ये आदले तकदीरी इसमें क्यों माना गया है? इसको इसकी जो नज़ायर है कौन? हजारे गलाबे, इनके हम वजन करने के लिए इसको क्या माना गया?
अदल तकदीरी माना गया, गैर मुनसरिफ पढ़ने के लिए नहीं है। इसीलिए दिगर किताबों में लिखा है कि इसको यहाँ पे जिक्र करना है वो बाब कता में, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों कि यहाँ पे इसको जिक्र करना कि अदल को इसलिए लाया जाता है गैर मुनसरिफ पढ़ने के लिए, वो पहले से गैर मुनसरिफ है। क्यों कि कताम ये क्या है, इसके इसमें कतामा है, वो पहले से क्या है, उसमें आरम मौजूद है और क्या है तानीस है, आरम और तानीस मौजूद है, वो पहले से क्या है, वो गैर मुनसरिफ है। फिर उसको गैर मुनसरिफ को गैर मुनसरिफ बनाने के लिए अदल तकदीरी निकालना इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये बताना मकसूद है अदल तकदीरी को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये मुशाबहत होने की बुनियाद पर इसको यहाँ पे उन्होंने जिक्र कर दिया। पसंद आ रही है बनो तमीम जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है।